taken shower and I booked an appointment for my nails. मैं करवाऊंगी gel nails. That's the first thing in our pamper routine. So this is how my nails has been looking lately. ये मैंने gel nail करवाया था about 25 days ago और मेरे nails की growth काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है. And मैं credit भी gel nail paint को देना चाहूँगी क्योंकि मेरे nails in general nature में काफ़ी brittle हैं, काफ़ी जल्दी वो टूट जाते हैं. But because मैंने gel nail paint करवाया था अपने nails के ऊपर, मेरे nails are better, वो टूटे नहीं, दे फील स्ट्रॉन्गर. तो ये जो जेल नेल पेंट है ना, ये काफ़ी पुराना सा खराब सा भी हो गया है. राइट हैंड में तो आप लोग देख सकते हो ऐसे येलोनेस आ गई बिकॉज ऑफ हल्दी. हाथ से खाना खाती हूँ मैं. एनीवेज, सो आई एम थिंकिंग कि पहले तो मैं जो लेंथ है मेरे नेल्स का वो छोटा करवा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि वो वापस ग्रो हो जाएंगे तो वो लंबे हो जाएंगे. मेरे को ज़्यादा लंबे पसंद भी नहीं है नेल्स. एंड सेकंड थिंग, आई विल बी गोइंग फॉर न्यू नेल कलर्स दैट कैन गो विद ईच एंड एवरी आउटफिट पॉसिबल. मैं मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी. मैंने फेस ऑलरेडी धो दिया और टोनर अप्लाई कर दिया, एक हाइड्रेटिंग टोनर. एंड आज मैं कोई एक्टिव अपने फेस पे यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि कल मैं जाऊंगी लेजर हेयर ट्रीटमेंट के लिए. तो उससे पहले आई वांट कि मेरी स्किन बस मॉइस्चराइज रहे, हाइड्रेटेड दिखे. आई हैव वेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन गाइस, सो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती विद माई स्किन. सो आई एम गोना मॉइस्चराइज माई स्किन. माई स्किन हैज बीन फीलिंग सो ड्राई लेटली. काफ़ी अच्छा खासा पंप लिया मैंने इस मॉइस्चराइजर का. एंड जस्ट अप्लाई दिस ऑल ओवर माई फेस, my neck as well. And then I'm going to use one of my favorite sunscreen. You guys have seen me use this sunscreen so many times in so many of my videos. This is Ecologica's Radiance Plus Dewy Sunscreen. This one has watermelon and niacinamide in it. So पहले मैंने fingers पे sunscreen को निकाला. I'm using 3-finger method to apply this sunscreen on my face and also on my neck. And then I will start blending it into my skin. It is extremely lightweight. It has a non-sticky formula to it और काफ़ी hydrating है ये sunscreen. काफ़ी जल्दी और easily absorb हो जाता है आपके skin में. ये बार अच्छे से blend हो जाता है. It leaves no white cast and it has a sweat proof formula. Also this sunscreen is fragrance free, color free. It comes with SPF 50 और PA+++ protection आपको ये देता है. Love the texture of this sunscreen. एकदम dewy plump effect देता है आपके स्किन को. आप धूप में चले जाओ इसको लगा के, it won't melt away from your face because it has a sweat proof formula as I told you guys. So if you're looking for a sunscreen that is hydrating and also going to protect your skin from UVA and UVB rays, highly recommend this sunscreen to you all. It is available on Amazon, Nykaa and at Ecologica's official website. For that I do have a coupon code Shalini2023. You can use my coupon code and you will get 20% off on your purchases. And now I'm gonna do a little bit of makeup. अभी ड्राइनेस कम भी लग रही है, अच्छे से हाइड्रेट कर दिया ना. थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया है मैंने. Going to blend this off camera. अभी ब्रश में कंसीलर से अप्लाई कर दिया. Going to set my face, not entire face, just under eye area. हल्का सा पाउडर ब्लश चीक्स पे, नोज पे, चिन पे एंड ओवर माई आईलिड. आईब्रोज भी फिल कर लिया मैंने. मस्कारा इज ऑल्सो ऑन. Lastly, I'm gonna wear this brown lipstick. Seriously need to do something about my hair as well because the lens are feeling super dry. This chain is on. It says Shalini. I'm ready. Now let's go. I've reached fingertips. Let's go inside now. So सबसे पहले I was picking the color that I want to go for my natural nails. I wanted something in brown nude or pink nude. They also showed me colors for cat eye nails जो कि recent trend चल रहा है. तो रेगुलर नेल पेंट का कॉस्ट है 1050 रुपीज और ये जो कैट आई है उसका कॉस्ट है 1950 रुपीज. एनीवे मुझे तो रेगुलर नेल पेंट ही कराना था. तो सबसे पहले जो पुराना जेल नेल था उसे निकाला. उसके लिए एक टूल यूज किया गया. उसे निकालने के बाद दिस इज व्हाट माय नेचुरल नेल्स आर लुकिंग लाइक. लेंथ कितने अच्छे खासे बड़े हो गए हैं. आई वांटेड शॉर्टर नेल्स क्योंकि एक महीने बाद वो ऑलरेडी इतने लंबे हो जाएंगे जितने पहले थे. एंड इट इज हार्डर टू मेंटेन लॉन्गर नेल्स फॉर मी पर्टिकुलरली. सो उन्होंने पहले अच्छे से शेप दिया, फिर क्यूटिकल्स को भी पुश करके उसे भी कट किया. एक्स्ट्रा क्यूटिकल्स थे. उसके बाद दे शोड मी सम नेल पेंट का कलर दैट आई पिक्ड फ्रॉम दैट बुक दैट दे शोड मी एंड आई वेंट फॉर दैट ब्राउन न्यूड शेड जो कि उन्होंने मुझे पहले अप्लाई किया था. मैंने यहाँ से आई थिंक 5-6 बार अपने नेल्स कराए हैं और मैं यहाँ पे बार बार इसलिए भी आती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं दे आर वेल ट्रेन. उनको पता है कि कैसे नेल्स को शेप देना है और कौन सा स्टेप कहाँ पे कैसा आना है. एनीवे सो बेस कोट अप्लाई करने के बाद उन्होंने उसे क्योर किया. फिर नेल पेंट का 3 कोट अप्लाई किया था. उसके बाद ही कलर आया था मेरे नेल्स पे. I also went for little glitter on one of my nail. इसका कॉस्ट है 50 रुपीज़. जो भी आप एक्स्ट्रा नेल आर्ट कराओगे ना अपने नेल्स पे उसका कॉस्ट हो जाएगा 50 रुपीज़ पर नेल. एंड येस दिस इज द फाइनल रिजल्ट. मुझे तो काफ़ी पसंद आया. आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा. The next day. I'm wearing the same clothes because मैंने कल थोड़ी देर के लिए पहना था तो why not. अभी मैं जा रही हूँ लेजर ट्रीटमेंट के लिए. I have not applied anything on my face except sunscreen and हल्का सा lipstick. I'm gonna insert close-up shot of my face. So आपको दिख रहा होगा कि मेरे face पे facial hair दिख रहे हैं. And this is my 4th session of laser treatment जो मैं करवा रही हूँ. तो मेरा लेजर होना है यहाँ से लेके
नेक तक, क्योंकि मुझे नेक पे भी बाल आते हैं। आई मस्ट से लेजर से मुझे डेफिनेटली फर्क तो पड़ा है। जो बाल पहले थिक आते थे वो हल्के से अभी फाइन आना शुरू हुए हैं। जो बाल एकदम जल्दी जल्दी आ रहे थे वो अब थोड़ा सा उनकी क्या फ्रीक्वेंसी कम हुई है, थोड़ा देर से आते हैं। तो जहाँ मैं 3 बार करती थी फेस को शेव हफ्ते में, वहाँ मैं अभी 2 बार कर रही हूँ। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो लेट्स गो हैव अ 1:30 अपॉइंटमेंट एंड वी आर काइंड ऑफ रनिंग लेट। लेट्स गो। सो मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पहुंच चुकी हूँ। सबसे पहले दे क्लेंस्ड माई एंटायर फेस एंड देन यूजिंग अ वाइट पेंसिल दे मार्क्ड माई एंटायर फेस। इससे पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक रेजर यूज करना है। एंड देन दे यूज्ड अ न्यू रेजर ब्लेड टू शेव माई एंटायर फेस। सो जहाँ जहाँ पे बाल दिख रहे थे, चिन पे, चीक्स पे, हर जगह उन्होंने बड़े ही स्मूथली अच्छे से धीरे धीरे करके मेरे फेस को शेव किया। एंड देन दे अप्लाइड अ कूलिंग एजेंट ऑल ओवर माई फेस। उसे अच्छे से स्प्रेड किया एंड देन बिगेन द लेजर ट्रीटमेंट। सो दिस इज डायोलेज एक्सेल ट्राइटन लेजर दैट दे आर यूजिंग ऑन माई फेस एंड दिस इज माई 4th सेशन एज आई टोल्ड यू गाइज। सो मेरा इन टोटल 6 सेशन होना है और मैंने इन एडवांस पेमेंट किया है, मैंने पैकेज लिया है। मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्लिनिक का, अलॉन्ग विद अमाउंट, आपको पर सेशन कितना पड़ेगा और जो पैकेज मैंने लिया था वो मैंने कितने का लिया था, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा। सो इस बार लेजर की इंटेंसिटी हल्की सी ज्यादा रखी थी कंपेयर टू व्हाट दे वर डूइंग अर्लियर। जब लेजर यूज होता है ना आपके फेस पे, यू गेट अ पिंचिंग इफेक्ट। ऐसा लगता है कि चींटी ने काटा है। यू फील इट फॉर लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसके बाद यू स्टॉप फीलिंग दैट थिंग। जब पूरा लेजर ट्रीटमेंट खत्म हो गया था, दे रिमूव द जेल फ्रॉम माई फेस और मेरा फेस ना काफी जल्दी फ्लेयर्ड अप हो जाता है, रेड रेड हो जाता है। so, उसे काम डाउन करने के लिए उन्होंने मुझे आइस पैक दिया था, जो कि मैंने कुछ 20 मिनट तक अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया था। और घर आने के बाद दिस इज व्हाट माई स्किन हैज बीन लुकिंग लाइक 2 आवर्स लेटर। काफी काम डाउन हो चुका है मेरा स्किन, जो फ्लेयर्ड रेडनेस दिख रहा था वो काफी कम हो चुका है। बस 2 और सेशन बचे हैं, उसके बाद आई एम गोना डू अ डिटेल वीडियो ऑन माई लेजर एक्सपीरियंस जर्नी एंड ट्रीटमेंट दैट आई हैव डन। Welcome to my washroom. It's time to take care of my hair. So I'll be applying 2 sets of hair mask, one for my scalp and one for the length of my hair. So scalp में मैं apply करूँगी scalp scrub. ये oily hair build up dandruff को target करेगा and for length I'll be applying a nourishing hair mask. सबसे पहले I'm going to use a brush to detangle all of my hair and making sure there is no knots. उसके बाद I'm going to wet my scalp using regular water. पूरे बालों को wet करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ scalp को wet करना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे हम लोग scalp scrub apply करेंगे। उसके बाद I'm going to scoop out some amount of this scalp scrub and directly apply this all over my scalp and start massaging my scalp very gently. I'm not being harsh on my scalp. I applied some more scalp scrub on the back of my head and I started massaging my scalp. This really helps to remove the build up dirt, gunk, और अगर थोड़ा सा dandruff भी हुआ होगा ना मुझे, वो भी रिमूव करने में मदद करेगा। This also helps to reduce oiliness from my scalp. So scalp scrub को कुछ 3 से 5 मिनट तक मसाज किया on my head and then I'm going to rinse my head. Scalp scrub सिर्फ रिंस करने से नहीं निकलेगा आपके बालों से, आपको शैम्पू यूज करना ही पड़ेगा। So I'll be using my regular shampoo, but मैं क्वांटिटी हल्का सा ज्यादा लूंगी than what I like to take on a regular basis, क्योंकि मुझे स्कैल्प स्क्रब का कोई भी रेसिड्यू नहीं चाहिए अपने स्कैल्प पे। So अच्छे से मैंने शैम्पू को अपने हेड पे मसाज दिया, लेंथ को भी अच्छे से धोया मैंने। उसके बाद I'm going to rinse this shampoo off from my hair using warm water again, and then instead of using conditioner for the length of my hair, I'll be using this hair mask. This is a nourishing hair mask, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अच्छा खासा क्वांटिटी लेके मैंने अपने बालों को 2 हिस्सों में स्प्लिट करने के बाद दोनों साइड इस हेयर मास्क को अप्लाई किया, फोकसिंग मोस्टली ऑन दी लेंथ ऑफ माई हेयर। मेरे लेंथ ना काफी डिहाइड्रेटेड से ड्राई से हो गया, उसे नरिशमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो आई एम गोना लीव दिस हेयर मास्क फॉर अबाउट 10 मिनट्स। यू कैन लीव दिस फॉर मोर देन 10 मिनट्स, लाइक 20 मिनट्स तक रख सकते हो। सो आई एम गोना क्रिएट अ बन एंड 10 मिनट्स लेटर आई एम गोना रिंस दिस हेयर मास्क ऑफ फ्रॉम माई हेयर। सो पहले मैं शावर से बाल धो रही थी, अब मैं एक मग्गे में पानी डाल के रिंस कर रही हूँ अच्छे से हेयर मास्क को। सो यहाँ पे जो पानी यूज किया मैंने वो हल्का कुनकुना पानी यूज किया एंड आफ्टर रिमूविंग हेयर मास्क आई ऑल्सो वॉश माई एंटायर बॉडी, टुक शावर। ओके गाइस, टेकन शावर, आई फील सो रिलैक्स्ड एंड गुड। ये जो हेड रैप अप्लाई करके रखा हुआ है ना, मैं इसे कुछ 10 मिनट तक रखूंगी अपने बालों में ताकि वो एक्सेस वाटर सोक कर ले मेरे बालों से। तब तक मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ एंड देन आई विल डू माई आईब्रोज एज वेल, क्योंकि ग्रोथ काफी ज्यादा हो चुकी है मेरी आईब्रोज की एंड आई रियली वांट टू लाइक रिमूव एक्सेस आईब्रो हेयर। स्किन केयर बहुत ही सिंपल रखूंगी मैं बिकॉज मैंने लेजर कराया, सो आई डोंट वांट टू डू अ लॉट ऑन माई स्किन। सबसे पहले एक हाइड्रेटिंग टोनर लेके जस्ट पार्टिंग इट। बाय द वे मैंने अपना फेस भी धो लिया था वॉशरूम में, वही 3 फिंगर मेथड का यूज करते हुए सनस्क्रीन को अपनी फेस पे और नेक पे अप्लाई करूंगी, अच्छे से स्प्रेड करूंगी इसको। फील सो डैम गुड, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ बट आई रियली फील सो डैम गुड एंड रिलैक्स्ड। थोड़ा सा लिप ग्लॉस अप्लाई कर लेती हूँ, लिप बाम मिल नहीं रहा मुझे एक्चुअली।
Skin care is done. Let's do the eyebrows. तो सबसे पहले I'm gonna fill my eyebrows how I regularly like to fill my eyebrows. तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से एक्स्ट्रा और एक्सेस आईब्रोज निकालने हैं मुझे. हम आईब्रो के आसपास एलोवेरा जेल अप्लाई कर देते हैं. मुझे लग रहा है कि पहले मुझे आईब्रोज करनी चाहिए तो उसके बाद मुझे स्किन केयर करना चाहिए था, क्योंकि ये वाले पार्ट में फिर से मुझे स्किन केयर करना पड़ेगा. ओहो, हो जाता है, कोई बात नहीं. देन आई एम गोना यूज दिस आईब्रो रेजर. मैं यूजुअली कार्मेसी का आईब्रो रेजर यूज करती हूँ, बट मेरा खत्म हो चुका है. आई हैव दिस, आई एम गोना बी यूजिंग दिस एंड वी विल स्टार्ट शेविंग. क्योंकि मैंने आईब्रोज को अच्छे से फिल किया है, आई हैव अ गाइडलाइन नाउ कि कहाँ तक एक्स्ट्रा बाल मुझे निकालने हैं. सो रेजर की मदद से आई विल स्टार्ट शेविंग माई आईब्रो हेयर एंड शेपिंग माई आईब्रोज. यहाँ पे और बीच में करना इजी हो जाता है आईब्रो रेजर से. जब नीचे की बारी आती है, मैं सिर्फ टिप का यूज करते हुए ना हल्का हल्का शेव करना शुरू करती हूँ. जस्ट रिमूविंग द एक्सेस. अगेन टिप की मदद से मैं यहाँ के बाल निकाल रही हूँ. Just gonna use a cotton and clean this up. Okay, eyebrows एकदम शेप में आ चुकी हैं. They look so good. फिल करने के बाद और अच्छे लगेंगे वो. माथे से सनस्क्रीन हट गया था तो बस अब फिर से लगा रही हूँ मैं. It's time to remove this head wrap. So जब एयर ड्राई हो जाएंगे बाल उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. It's been 1 hour or so. I completely air dried my hair. मुझे blow dry करने की भी जरूरत नहीं पड़ी. My hair feels so smooth and soft to touch, you guys. That hair mask, I highly recommend that hair mask. I'm gonna link that in the description box. मैं ना एक ड्रॉप इस सीरम का लेके I will just apply that for the length. Just running through my lens and just brush my hair. ऊपर से पहले, फिर नीचे. So I'm going to keep my hair as it is. This is the natural texture of my hair. My hair is wavy in nature. The next thing that I'm going to do in this pamper routine is taking care of my feet, and I'm super excited for this part. The past 3 months I have been traveling a lot और मैंने पैरों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है. बहुत ही खराब हालत हो रखी है. So I'll be using this pedicure kit that I got online and I'll be taking care of my feet. तो इस pedicure kit में 4 sachet आते हैं, but we will be only using 3. सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ एंटीसेप्टिक फुट सोक. वार्म वाटर में मैंने इसे डाला. कुछ 15 मिनट तक मुझे इसे सोक करके रखना है. एंड 15 मिनट्स लेटर आई एम गोइंग टू यूज माई पेडिक्योर टूल. इसमें ये जो मेटल रेस्प वाला साइड है ना, उसकी मदद से आई विल स्टार्ट स्क्रबिंग माई एरिया. यहाँ पे डेड स्किन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, सो उसे स्क्रब करना काफी ज्यादा जरूरी था. स्टेप नंबर 2 इज यूजिंग फुट स्क्रब. सो सबसे पहले मैंने अच्छे से फुट स्क्रब को स्प्रेड किया मेरे पैरों पे, एंड देन विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स आई विल स्टार्ट मसाजिंग इट. इसमें छोटे छोटे हल्के से बीड्स और ग्रैनुल्स थे. दैट इज गोना हेल्प टू रिमूव डेड स्किन सेल्स. आई थिंक स्क्रबिंग नहीं करने की वजह से ही मेरे पैरों पे जो भी मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई करती थी ना, वो अच्छे से सोक अप नहीं कर पा रहा था मेरा पैर, क्योंकि इतना ज्यादा डेड स्किन उसने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ था. करीबन 2 मिनट तक मैंने अच्छे से स्क्रब किया मेरे पैरों को. उसके बाद मैं इसे अच्छे से धो लूंगी. उसके बाद मैं टॉवल ड्राई करूंगी अपने पैरों को, एंड देन आई एम गोइंग टू यूज नेल पेंट रिमूवर. उसके बाद आई विल स्टार्ट रिमूविंग द नेल पेंट दैट आई ऑलरेडी हैड. नेल पेंट रिमूव करने के बाद आप लोग देखोगे कि मेरे नेल्स ना कितने पीले पीले दिख रहे हैं, विच मीन्स आई नीड टू फाइल माई नेल्स ऑल्सो. इसलिए फाइलर की मदद से मैंने अच्छे से फाइल किया मेरे नेल्स को. उसके बाद मैंने नेल्स भी कट किए. काफी लंबे हो गए थे नेल्स और इवन भी नहीं थे दोनों पैरों के नेल्स, इसलिए नेल कटर की मदद से मैंने कट किया अपने नेल्स. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज दिस नरिशिंग मास्क. दिस इज अ लीव-ऑन मास्क. सो अच्छे से अप्लाई करने के बाद स्प्रेड किया मैंने इस मास्क को. आई लेफ्ट इट ऑन फॉर 10 मिनट्स और सो. उसके बाद आई एम गोइंग टू रिंस दिस ऑफ यूजिंग नॉर्मल वाटर. सो मैंने पानी चेंज करके नए पानी से अच्छे से मेरे पैरों को धोया. उसके बाद आई एम गोइंग टू टॉवल ड्राई माई फीट. एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया, दैट इज रिच इन शिया बटर एंड विटामिन ई. एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मॉफ पिंक कलर का नेल पेंट. दिस इज कॉल्ड प्रिंसली. एक कोट में शेयर दिखता है, बट 2 कोट में काफी ज्यादा सुंदर लगता है ये नेल पेंट. और इस नेल पेंट का कलर इज ऑल्सो प्रीटी सिमिलर टू द वन दैट आई एम वेयरिंग ऑन माई फिंगर्स. एंड येस, दैट्स हाउ आई डिड दिस क्विक पेडिक्योर सेशन. मुझे करीबन आधा घंटा लगा इस पेडिक्योर को करने में, बट इट वाज सो रिलैक्सिंग. Alright, that was the last thing that I did in my pamper routine, and I honestly feel this is one of the best pamper routine that I filmed and posted on my channel. I feel so relaxed. My mind and my body feels so relaxed. मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये pamper routine कैसा लगा. अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो मेरे चैनल से, then you know what to do. Please make sure you subscribe to my channel if you haven't already, and like and share this video with your friends and family. And I'm going to see you guys pretty soon with a brand new content on my channel. Bye everyone. Take care.